Hello, everyone. A big warm welcome to all of you on this expert series of my Special Needs Children podcast. Today, we have a very young, chirpy friend of ours who we have seen over the years as to what a beautiful young woman, very sorted and very knowing person she has become. Miss Nehal Tiwari. Thank you so much, Nehal, for coming on the show. Thank you. And a warm welcome to both of you, Seema and Anupam. Thank you for joining in as a family to share with all of our viewers about Nehal and all of you. Nehal Tiwari is a consultant at EY, Ernst & Young, and a very gifted artist whose journey is as inspiring as her artwork. Nehal's artistic path began in college with a passion for stone painting, which has been a source of strength and expression throughout her life. Diagnosed with autism at the age of 2, Nehal transformed her challenges into opportunities for creativity, using her art to communicate and connect with the world. She is also actively involved as an advocate on various panels. Her stunning stone paintings, some of which have been showcased at the India Habitat Center in New Delhi, illustrate the profound impact of early intervention and community support. So, coming straight to both of you first, Anupam and Seema, what was your initial reaction when you learned about Nehal's passion for stone painting? How did you support her artistic journey? Actually, it was not something like we found it. She developed it with time because जब भी वो छोटी थी तो we tried all these skills with her like painting, swimming, किस में अच्छा करती है वो करके देखेंगे. तो she was good in painting, but in college she got the opportunity and वहाँ उसने stone painting सीखा. And then हमको लगा कि she is improving in that day by day. तो उसको हम स्टोन्स ला के देते गए, उसको रोका नहीं कि टाइम वेस्ट होगा, ये मत करो, पढ़ लो. उसको प्रमोट करते गए. सोशल मीडिया हेल्प्ड अस. हर चीज़ को हमने सोशल मीडिया पे डाला एंड व्हेन जो थम्स अप आते हैं वो उसको इतना मोटिवेट करते हैं कि विद दैट एवरी डे शी इज़ इम्प्रूविंग नाउ ऑल्सो. जब भी कुछ नया बनाती है तो हमको लगता है पहले वाले से बेहतर है. क्या बात है, लवली. कौन से कॉलेज जा रही थी नेहल जहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला? शी वॉज इन सेंट जेवियर्स कॉलेज, Okay. मुंबई. ओके नेहल, आपको मैं पूछूं, Yes. हाउ हैज बीन योर जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड? कैन यू प्लीज शेयर अ बिट about yourself? How has it been for you as until now you're an acclaimed artist, and a working professional? When I was a baby, I was not speaking. There was no eye contact. Then my parents took me to different hospital where I was diagnosed. And at Cheslok Hospital, I was diagnosed. Then I got admission in Kangaloo Kids where they mistreated me. They tied me with the packing tape to sit at one place. Then I got admission in Chiti Somani Memorial School. Then from senior KG to 10th standard, I studied in Chiti Somani Memorial School and also 11th and 12th in Kopi Pilla Memorial School. 10th standard was ICSE board and 12th standard was CPSE board. Then I got admission in St. Xavier's College and I did BSc IT as I love computers. I have completed my graduation in 2020. Then I joined EY on 9th November 2020 and it has been 4 years. I'm working on data compilation, data extraction and data flow diagram. I'm comfortable working in hybrid mode. I interact with each other in person. Then we shifted when I was a baby. Then we shifted from Mumbai to Indore and I was diagnosed. Indore to Mumbai. Indore to Mumbai and I was diagnosed. Okay, and now after this journey, somewhere along the way, you realize that you love art and you started stone painting. आपको क्या पसंद है stone painting के बारे में? I have my own stone painting website, Insta page and Facebook account and I attended stone painting workshop at St. Xavier's College on 10th February 2018 and after stone painting workshop, stone painting became my passion.
now I'm doing stone painting for many years. Fantastic. And all of us have seen how beautifully you paint. And I think हर घर में भी आपका ऐसा stone painting बहुत लोगों के घर पे है, right? Yes. A lot of your friends, lot of the families, all of us have displayed your painting at home. हमारे घर में एक राम सीता है, हाँ? So what makes you happy, Nehal? I make theme paint like Ram, Sita, Radha, Krishna, but my favorite is to make Ganpati. Wow, lovely. Yes. You like to make Ganpati because he looks very cute. Yes. Yeah. So, same question to both of y'all. What makes y'all happy? Nehal's happiness makes us happy. It's been a long journey, but with Nehal, it's like achievement on a daily basis, happiness on a daily basis, because there is something she वो रोज कुछ ना कुछ नया करती है, कुछ अच्छा करती है, और ऑलमोस्ट अभी जब उसके जॉब भी अच्छा चल रहा है और ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 स्टोन पेंटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000. Wow, brilliant. तो वो भी एक बहुत खुशी की बहुत बड़ी बात है, चीज़ है, एंड absolutely. शी इज़ हैप्पी, Yeah, शी इज़ हैप्पी, सो वी आर हैप्पी. excellent. शी कीप्स अस हैप्पी. वो हमको बैठने नहीं देती है. कुछ भी होगा तो शी विल आफ्टर दैट कि चलो अभी ये फेस्टिवल आने वाला है तो विल मेक प्रिपरेशंस. ऐसे ही जाने दो, वैसा नहीं होता है उसके साथ में. इट्स ऑलवेज कि कुछ नया है तो लेट्स ट्राई. बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कुछ नया फूड है तो लेट्स ट्राई. मीन्स एवरी टाइम वो हमको जीने के लिए धकेलती रहती है, मज़े करने के लिए धकेलती रहती है. Super. And there are many things which make me happy, like going out with family members, going for sightseeing and clicking photos. And I love working in EY. I also love canteen food and meeting relatives at Bhopal and getting positive feedback about work and stone painting. People appreciating my work, helping others in cooking. क्या बात है? That is lovely. बहुत बड़ा लिस्ट है. नहीं, मम्मी डैडी ने कितना हेल्प किया है आपको इस सब में? And your sister. Huh. I have my younger sister Vedika, and my parents always motivate me to do better, and they guide me to participate in new activities. We follow policy of prize or supplies. Like if I win, I'll get the prize. Otherwise, I will get the supplies. And my parents help me in studies by making easier notes, and also help me in learning the same. And they have faith in my potential. वाह. सीमा अनुपम, ये क्या है? क्या किया है आप लोगों ने? ये क्या किया है? So many things she said. वो जो सरप्राइज का है वो क्या है? एक्चुअली जब भी नेहाल छोटे थे तो हमको लगता था कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, देन ओनली शी विल बी रियली इंक्लूडेड. तो वो हर चीज़ में बेहतर तो नहीं थे, तो वो जीत नहीं पाते थे. तो हमारा घर का रूल था कि अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ. तुम अगर जीत जाते हो तो तुम्हें स्कूल से प्राइज़ मिलेगा, और अगर तुम नहीं जीतते हो तो हम तुमको सरप्राइज़ देंगे. और नॉर्मली सरप्राइज़ वो प्राइज़ से बेहतर होता था. तो नेहाल हर एक्टिविटी में स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे. एक बार तो ऐसा हुआ था 9th स्टैंडर्ड में कि उन्होंने लगभग हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और जीते सिर्फ आई थिंक म्यूज़िक दैट कीबोर्ड कंपटीशन में. तो उनके प्रिंसिपल ने एक स्पेशल अवार्ड दिया था उनको. कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन अवार्ड. क्या भाई? मिला था नेहा. 28 January 2011 Consistent Participation Award. So that's a big achievement that Very actually that surprise paid us. Yeah. Nehal, today you keep getting a lot of orders, no? For your stone painting. You go and attend various workshops. You go and also are part of various exhibitions. So how do you manage your work at EY and the painting also at home? And after office hours, I do my stone painting, and I never get tired. And I also do stone painting on Saturday and Sunday, and also during holidays. And my work gets displayed in exhibition quite often. Lovely. What are your favorite colors for your stone painting?
purple and pink. Okay, very nice. Seema and Anupam, today Nehal is invited to be on many panels. She's invited to talk about her journey. She's invited to give her opinions on various things. And there are people who are attending are both neurotypical as well as neurodivergent. It must have been huge. Whatever you all did, what's only visible is what has happened and how she is today. But what was the kind of efforts? क्या क्या किया आपने? Background में, whatever happened at home, किस तरह की मेहनत थी वो? क्या क्या करना पड़ा? Intervention. Can you please dig a little deep and share? शुरू में जब नेहल डायग्नोज हुई थी तो उसके बाद में हम लोगों ने यही पता किया कि क्या क्या थेरेपीज़ हैं. तो स्टार्टेड विथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, उसके बाद स्पीच थेरेपी. ऑक्यूपेशन थेरेपी की नेहल को उतनी ज़रूरत नहीं थी, तो स्पीच थेरेपी और उसके बाद कॉमडील दीपा के साथ किया. और हमारी कोशिश स्कूल में ये रहे कि वी आस्क टीचर्स कि व्हाट वी कैन डू सो दैट व्हाट स्कूल एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ अस. नॉर्मली हम लोगों के साथ मोस्टली इट इज़ अदर वे अराउंड कि वी एक्सपेक्ट टीचर्स टू डू अ लॉट. बट व्हेन वी नो कि आवर चिल्ड्रन नीड सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, in order to facilitate that, we used to ask ki what should we do so you will have less difficulty in handling Nehal. So we kept track of Nehal's progress and we accordingly tried to do as far as her academics were concerned. हम लोगों की कोशिश ये होती थी कि आंसर्स हम ऐसे बनाएं जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स थे जिसमें पूरा याद करना पड़ता, उसको साइंस और मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एवरीथिंग इट्स लाइक बाइनरी, इट्स ईदर 0 और 1. बट इन केस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड हिस्ट्री, सिविक्स एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स, वो पूरा इट वाज लाइक फ्रेंच एंड जर्मन इज़ व्हाट फॉर अस. तो उस समय हम लोगों ने कोशिश ये की कि बिल्कुल ईजी आंसर्स बनाए जिससे नेहल को डिफ़िकल्टी ना हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस. एंड ऑल्सो जहाँ भी पॉसिबल होता था वी यूज टू रिपीट द सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस सो दैट हर कन्फ्यूजन इज़ लिटिल लेस. उसके बाद स्कूल से हम लोग टच में रहे और हम लोगों का बिल्कुल जैसे नॉर्मली एक न्यूरोटिपिकल्स होते हैं, दे ऑलवेज बिलीव इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि 10th के बाद क्या, 12th के बाद क्या और कॉलेज के बाद क्या. हम लोग ने बिल्कुल जैसा वो फास्ट एंड फ्यूरियस का डायलॉग है, क्वार्टर माइल एट अ टाइम. सो वी टुक जर्नी एज 1 year एट अ टाइम, कि अगर नेहल 3rd में है तो लेट हर फर्स्ट कम टू 4th एंड देन वी विल सी व्हाट इज़ टू बी डन. तो एक साल करके एंड वी वर ऑल्सो एबल टू मेजर प्रोग्रेस. दूसरा एक डिफ़िकल्टी ये होती है कि कोई भी प्रोग्रेस इज़ वेरी नॉन लीनियर, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट. तो जैसा शेयर मार्केट होता है कि इट नेवर गोज़ इन अ लीनियर वे, इट ऑलवेज देयर आर अप्स एंड डाउन्स. तो वैसे ही होता है, अगर उसको थोड़ा इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में बोलें तो जैसे साइन वेव होती है, इट ऑलवेज गोज़ हाई देन इट गोज़ लो, बट द फाइनल आउटकम इज़ ऑलवेज बेटर. तो यू नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू हैव कन्विक्शन, यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू नीड टू हैव परसिवरेंस, कि आप धीरे धीरे करते जाओगे तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स वुड बी गुड. एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यंग पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, कि we normally lot of time it happens कि we understand कि our children are not getting it, but उनको सब समझ में आता है, they understand each and everything. तो try to be positive, try to be motivating. अगर आपको लग रहा बच्चा नहीं समझ पा रहा, हो सकता है कि आज से 2 साल बाद आपको वो बोले कि आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा किया था. नेहल के मम्मी में काफ़ी बार ये हुआ रहेगा ना. भी नेहाल बताते हैं कि पर वो अभी भी जैसे घर में कुछ होता है, कुछ टूटता है, तो वो सबसे पहले बोलते हैं मैंने नहीं किया. तो मुझे गिल्ट लगता है कि शायद जब वो छोटी थी तो हर चीज़ का ब्लेम वो करे या नहीं करे मैं उस पर डाल देती थी. वो फीलिंग आज तक उसकी गई नहीं है. मतलब चूहे ने भी किया होगा, देन ऑल्सो शील कम एंड से कि मैंने नहीं किया है. तो हम लोग ये छाप छोड़ देते हैं अपने बच्चों के ऊपर, जो उनको हमें लग रहा होता है उन्हें समझ में नहीं आया, बट उन्हें समझ में सब आ रहा होता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उनके सामने क्या बोल रहे हैं, हम उनके सामने क्या बात कर रहे हैं, हम उन कितने जजमेंटल हो रहे हैं उनके लिए. क्योंकि हमारे बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, समझ सब रहे हैं, दैट इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि वो अंदर भर रहा है.
जैसे आप और हम हैं, कभी किसी ने ख़राब बोला तो हम उसको उसी समय बोल के निकाल लेते हैं या बाद में बोल के निकाल लेते हैं या पीठ पीछे बोल के निकाल लेते हैं। हमारे बच्चों को ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं। वो हर चीज़ भर लेते हैं और फिर उसके कारण वो अगर कोई ख़राब बिहेवियर कर रहे होते हैं तो हम उनके बिहेवियर को फिक्सेशन का नाम दे देते हैं या कुछ और नाम दे देते हैं कि मेल्टडाउन्स हो रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे हैं। तो हमको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो सब चीज़ समझ रहे हैं। सो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमें ये सब मालूम था, वी ऑल्सो लर्नड धीरे धीरे। जब उसने बोलना चालू किया तब हमको समझ में आया कि ये तो उसको समझ में आया था, तो हमको ऐसा नहीं बोलना है उसके सामने। नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने बोला, क्योंकि एक है कि पेरेंट्स खुद अगर ये विश्वास रखें कि हाँ हमारा बच्चा सब, उसको सब समझ में आ रहा है, तब जाके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो ये हमेशा घर पे बच्चों के सामने ही जो बोला जाता है उनके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। और कई केसेस में ऐसे भी हुआ है कि बच्चा रोज रो डालता है और हमको फिर समझ में नहीं आता, जैसे आपने बोला कि मेल्टडाउन हो रहा है या जो भी बिहेवियरली बोल रहे हैं, तब लोगों को समझ में नहीं आता। जब हम बोलते हैं ना कि आप देखो कि उस एनवायरनमेंट में क्या हुआ, आपने क्या बोला या आपने क्या किया, वो बहुत सेंसिटिव हैं। ऐसा क्यों आप प्रिज्यूम्ड कॉम्पिटेंस जो बोलते हैं, आप क्यों सोचते हो कि उनको नहीं समझ में आ रहा है? ये मत करो, राइट? सेकेंडली हमने जब नेहल बहुत छोटे थे तो इनको डायरी का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा। तो वी गेव हर वन स्मॉल डायरी। इनिशियली तो वो तो स्टार डायरी थी कि कुछ अच्छा किया तो स्टार मिलेगा। जब वो सेट हो गया तो फिर उसमें क्रॉस भी मिलने लगे और स्टार एंड क्रॉस के बेसिस पे कुछ उनको मिलता था, आइसक्रीम नहीं तो टॉफ़ी कुछ। एंड देन ग्रेजुअली शी स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स इन दैट। तो अब ये है कि कभी कभी तो हमें डायरी से पता लगता था कि उसके साथ स्कूल में कुछ हुआ है ऐसा जो भी उसे पसंद नहीं आया है, जो वो हमें नहीं बता पाती थी। ऐसा नहीं कि डायरी में वो बहुत क्लियरली लिख पाती थी और उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती थी, बट समझ में आता था कि हाँ समथिंग समथिंग हैज़ हैपेंड। तो वो उसको हेल्प किया है, डायरी ने हेल्प किया है। दूसरा, अनुपम ने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी। जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, हर साल हम लोग एक थैंक यू लेटर प्रिंसिपल को देते थे जो फॉर द सपोर्ट। क्योंकि वो होता ये है कि अगर प्रिंसिपल आपके बच्चे को सपोर्ट दे रहे हैं तो पूरा इकोसिस्टम स्कूल का उसको सपोर्ट देगा। तो होता ये था कि फिर प्रिंसिपल टीचर्स को बताते थे कि आपके लिए इन्होंने बहुत अच्छा लेटर दिया है, और जो उनकी मीटिंग होती थी दूसरी टीचर्स भी सुनते थे। तो जब नेक्स्ट ईयर नेहल उनकी क्लास में जाती थी तो वो भी अच्छे से बिहेव करते थे नेहल से। तो वो जो चीज़ थी, एंड प्रिंसिपल से जब हम लोग अभी मिले तो उन्होंने बताया कि आपके लेटर इतने अच्छे होते थे कि मैंने सारे लेटर संभाल के रखे थे। क्या बात है। तो वो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भले छोटे लगे लेकिन बहुत द वे आप लोगों ने ये देखा कि हमारे जो भी नेहल के इर्द गिर्द हैं वो सब लोग हाथ जोड़ के नेहल के को सपोर्ट कर रहे थे और उसको चांस दे रहे थे कि हाँ अनुपम। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी डायग्नोज हुए हैं, कि एक्सेप्टेंस जो है वो घर से स्टार्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ इशू है। अगर आप ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट द वे यू वांट देम टू। तो द एक्सेप्टेंस हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम होम। आप पहले एक्सेप्ट करो, उससे बहुत सारे बर्डन्स कम हो जाते हैं, दैट यू डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग। शुरू में हमको भी कुछ दिनों तक बहुत तकलीफ़ हुई जब हमने किसी को बताया नहीं, बट एक बार जब सीमा के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में हमने सब बता दिया तो एक बहुत बड़ा एक जो होता था कि अगर नेहल ऐसे बिहेव करेगी तो हाउ विल वी फील, तो वो एक फ़ियर हमारा ख़त्म हो गया, बिकॉज़ हमने कोई भी चीज़ छुपाई नहीं। और जब हमने बता दिया तो लोगों को लगता था कि ठीक है, बच्चा अगर बिहेव कर रहा है मतलब किसी और वजह से कर रहा है, इट्स नॉट बिकॉज, और हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहता था। तो वी नेवर हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंगर पेरेंट्स जो अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, टू एक्सेप्ट दैट हाँ कुछ इशू है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, यू विल बी स्टक वेयर यू आर राइट नाउ। तो दैट इज़ वन पॉइंट आई वांटेड टू ऐड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे से आपने बताया
and thanks for that. Moving on, I wanted to check with you that आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, एंड ऐसा कुछ, आई मीन पीपल नो दैट हमारे बच्चों के लिए अगर सो मेनी पीपल हैव टू बी इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज़ इंटरवेंशन अदर देन स्कूलिंग, जो सब हमको करना पड़ रहा है, एक तो आप ये बता पाएंगे बिफोर आई गो देयर दैट आपने नेहल के कितने उम्र तक इंटरवेंशन जारी रखा? इंटरवेंशन उसका इनिशियली तो बहुत एक्सटेंसिव था। उसके बाद हम लोग होम प्रोग्राम लेके काम करते थे। वो होम प्रोग्राम आज तक चल रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवर कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि एवरीडे आपका बच्चा कुछ नई चीज़ सीख रहा है। पहले उसने बोलना सीखा, तो फिर चलना सीखा, बोलना सीखा, फिर उसने स्कूल जाना सीखा, रोड क्रॉस करना सीखा। अब उसने ट्रेन से जाना सीख लिया है, बस से जाना सीख लिया है, ऑफिस जाना सीख लिया है, खुद अपना मनी एक्सपेंड करना सीख लिया है, थोड़ा थोड़ा बैंक का काम सीख लिया है। तो एवरी डे कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। हम सब भी तो रोज़ ही सीख रहे हैं। Yes. तो वैसे ही वो अब ये बात अलग है कि हमको बच्चे को थोड़ा ज़्यादा सिखाना पड़ता है, ज़्यादा गाइड करना पड़ता है। तो वो जर्नी तो ख़त्म होने वाली नहीं है। करेक्ट। सो ये आपने जो बताया, ये सब जो डेली रूटीन्स हैं और डेली लाइफ स्किल्स हैं, इस पर भी बहुत मेहनत डालना पड़ता है, और एज अ फैमिली आई गेस आपने जो नेहल को समझ में आएगा वैसा उसको सिंप्लीफाई करके आपने सिखाने की कोशिश की है, और आज टुडे शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन विच इज़ सो ग्रेट, राइट? बिकॉज जैसे हमने अभी बात की कि वी ऑल फील सो प्राउड ऑफ हर दैट नेहल का जर्नी इतना अच्छा रहा है अब तक. शी हैज़ लर्नड एंड शी इज़ एबल टू फेस अ कैमरा एंड so confidently she is able to talk, right? Yes, नेहल. नेहल, अभी मैं फिर से मम्मी डैडी को पूछ रही हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के बारे में अगर आप बताएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर कैसा है और उसके लिए किस हद तक आपने प्लानिंग ऑलरेडी की है, इसके बारे में आप थोड़ा शेयर करेंगे? यहाँ पे MFA ने हमारी बहुत हेल्प की, बिकॉज टू वेज. एक तो वी वर नॉट वेरी क्लियर एज टू हाउ द फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि मनी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इफ़ इट इज़ आइडल देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, और हमेशा आपको लगता है कि आपके पास है नहीं. तो जो प्रोसेस जो एक इनिशियल पार्ट था डिस्कशन का, उसमें ये था कि आपके पास क्या क्या है. तो वी रियलाइज्ड वी हैव समथिंग. नहीं तो हमेशा लगता है कि हमारे पास कुछ है नहीं. तो हाउ इट हैज़ टू बी बकेटेड इन डिफरेंट थिंग्स, एंड हाउ द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हैज़ टू हैपन, कि आप हर चीज़ आप इक्विटी के बेस पे नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद डेट. जितना इक्विटी ज़रूरी है उतना डेट ज़रूरी है. तो दिस वी केम टू नो व्हेन वी गॉट इन टच विद MFA. तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको क्या आपके लाइफ गोल्स हैं और कैसे आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, इट हेल्प जस अ लॉस्ट. जो दूसरा और थोड़ा आगे का चीज़ है, जहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर नॉट देयर, तो उसके लिए जो प्लानिंग हुई, तो पहला आया विल और दूसरा आया ट्रस्ट. तो थैंक्स टू यू, फ्रॉम योर सेशन ओनली वी केम टू नो एंड देन वी स्टार्टेड. दूसरी चीज़ ये होती है कि आई वांट टू टेल यंग पेरेंट्स टू प्रॉपरली प्लान देयर फाइनेंसेस, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन. आप एक न्यूरोटिपिकल किड के भी मदर होते हैं, तो आप बहुत प्लान करते हैं. तो आपको यू हैव टू बी मच मोर कीन ऑन सिक्योरिंग फ्यूचर फॉर आवर स्पेशल किड्स. वो प्लान करना चाहिए. दूसरा बहुत एक अच्छा बेनिफिट ये होता है, जैसे हमने आपके पॉडकास्ट से पता चला, वी हायर्ड द पीपल हु हैव डन फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म अर्लियर. तो उनको सब मालूम है कि कैसे करना है. विल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें विल और ट्रस्ट में आप यू नीड नॉट फॉलो द सेट रूटीन. यू कैन take any clause on earth, any point on earth, and make it a part of your will and a trust. So that we came to know through MFA. तो ये बहुत it was really a kind of eye opener for us, the kind of financial planning details. इतना कभी सोचा नहीं था कि इतना थॉट प्रोसेस उसके पीछे लगना चाहिए कि आज आपके पास क्या है, फिर अगर आपको आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 ईयर्स बाद देखना है, तो what is the need, how would you take care of growing inflation, how would you make sure that there is always a delta between the inflation and the returns which you are targeting. So it was a great help from MFA.
for us. थैंक यू। आज जब नेहल पैसा हैंडल कर रही है तो आपने किस हद तक उसको सिखाया है और उसको क्या समझ में आता है? नेहल और अनुपम दे बोथ आर कॉपी। इनको खर्च करने में बड़ा मज़ा आता है। तो हमने पहले तो नेहल को ये समझाया है कि थोड़ा कम करो, क्योंकि उनका ये है कि अगर घर में कुछ भी ख़त्म हो रहा है तो शी विल गो टू द शॉप एंड शी विल बाय, चाहे वो राइस हो चाहे आटा हो। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू स्पेंड। एंड लाइक आई विल टेल यू वन स्टोरी। जब भी उसने जॉब ज्वाइन किया तो इट वाज कोविड पीरियड, तो शी वाज नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो फर्स्ट डे जब पहली बार ऑफिस गई पूरा दिन अटेंड करने के लिए, तो मुझे तो ऑफिस में बैठते ही नहीं पड़ना था, मेरे एकदम दुख 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 क्या होने वाला है। देन आई थॉट आई विल गो एंड पिक हर अप। शी केम आउट फ्रॉम हर ऑफिस एकदम खुश, एकदम खुश। ये कहा आज तो लगता है बहुत अच्छा कुछ काम करके आ रहे हैं। क्या हुआ ऑफिस में? I bought coffee for myself using GPay. That was the first time जब उसने अपने आप कुछ अपने लिए खरीदा था और स्पेंड किया था। तो वो चीज़ उसके लिए इतनी बड़ी थी। तो शी लव्स टू स्पेंड। तो हमने उसको जीपे का कॉन्सेप्ट दिया है और उसके अकाउंट में बहुत लिमिटेड पैसा हम डालते हैं, ऐसा 10,000। ऐसा नहीं कि कुछ गलती से किसी को पिन बता दे। और उसको ये सब चूँकि वो आईटी में है तो उसको पासवर्ड की सिक्योरिटी काफ़ी मालूम है। बट स्टिल मतलब मैं नहीं कहती हूँ कि इट्स नॉट वेरी इजी टू फूल आवर किड्स, इट्स वेरी इजी टू फूल देम। तो बहुत सीधे होते हैं हमारे बच्चे, बहुत करप्ट नहीं होते। उन्हें उनके हिसाब से दुनिया में कोई भी ख़राब नहीं है कि वो ख़राब नहीं है। ये तो हम उसके अकाउंट में एक लिमिटेड अमाउंट डालते हैं एंड वी हैव एम्पावर्ड हर टू यूज़ जीपे से वो पेमेंट करते हैं। और उनको सिर्फ एक लिमिट समझाइए कि आप बहुत सामान मत खरीदो, जो ज़रूरत का है वो खरीदो। तो शी इज़ फॉलोइंग दैट एंड उसको बहुत एम्पावर्ड लगता है लवली। जब वो अपने आप कुछ सो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं नहीं? ऑनलाइन नहीं हाँ, नहीं। वो थोड़ा लिमिट के बाहर हो जाएगा। तो अब पर ये ज़रूर है कि ऑफलाइन में जैसे अभी उसके 4 इयर्स ऑफ जॉब हुआ, तो पहली बार मुझे और अनुपम को वो ट्रीट पे लेके गई एंड शी पेड हरसेल्फ। सो वो सब ये तो वो बहुत बहुत खुश होते हैं, वेरी बहुत खुश। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ना जो तो ये स्पेंड करने में इनको बहुत खुशी होता है। सो या नेहल दिस इज़ वेरी गुड। तो फिर आप आपकी सैलरी तो आ रही है, उसमें से आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे इतना सेव करना है, राइट, और इतना स्पेंड करना है, ऐसा आप कर सकते हो कि आप ये सोच सकते हो कि मम्मी डैडी को कि मुझे भी घर खर्च के लिए हेल्प करना है आपको। सपोज आप 100 रुपीज़ कमा रहे हो, तो उसमें से आपने बोला कि 20 रुपया मैं घर पे दूंगी, ओके, 50 रुपया मैं सेव करूंगी मेरे फ्यूचर के लिए, तो बचा हुआ 30 रुपया है वो मैं खुद पे खर्चा करूंगी, राइट। सो दैट मीन्स यू हैविंग अ सेविंग्स बजट and you're having an expense budget also, right? So Nehal, coming to you, what are the kind of challenges that you have faced in your career? जब ये काम कर रहे हो आप, तो किस तरह का बुलिंग हुआ है, किस तरह का आपने सपोर्ट मांगा है, लोगों ने आपको किस तरह से हेल्प किया है? As I face problem in verbal communication, I'm not good in facing interview. I'm judged on my verbal ability rather than intellectual capabilities. The seniors allot the work to me and I submit the work on time. At school, some boys bullied me as they were not aware about autism, but at college, nobody bullied me. At school, I didn't have much friends, but at college, I had much friends. Very nice. Yeah. Today you have many friends? Do you have enough friends now? Yes, I have friends at EY office also. Very nice. Yeah. Very good. So I see that you're very fast on WhatsApp. Yes, You're very good on Facebook. yes, You are also on Insta, right? yes. So can you please share what is your stone painting ka Insta idea stone painting Mumbai and kindly follow. Excellent. We will tell everyone to follow, Yes, right? Coming to both of you, thank you Nehal for that. yes. आपको क्या लगा in terms of the challenges that she has faced? Obviously, you have faced challenges in terms of getting people to want to be friends with her. How was it in family? How was it in the immediate surrounding, neighbors?
स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स कैसा रहा और अभी ऑफिस? फैमिली के साथ एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा कि दे वर वेरी ओपन एंड एंड दे वर वेरी व्हेन वी टोल्ड देम सो दे वर वेरी लाइक ओपन टू एक्सेप्ट कि ठीक है नेहल को है तो हमारी तरफ से क्या क्या सपोर्ट चाहिए। तो चाहे वो नानी हो या दादाजी हो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और इसलिए नेहल का जो अफेक्शन है जो जैसे उसने अभी भोपाल के बारे में बोला तो शी इज़ वेरी कीन, शी इज़ वेरी अटैच टू दादाजी, मौसी हैं, बुआ हैं, चाचा हैं, मामा हैं बहुत। और उसको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ मिलना और वो भी उतने ही अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। Nehal gets a special treatment when it comes to anybody and everybody in her family, तो उसके कारण बहुत बेनिफिट हुआ। एक जो फ्रेंड्स का रहा तो शायद अवेयरनेस अभी स्कूल लेवल पे उतनी नहीं है, फिर स्कूल में थोड़े कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। नेहल के साथ एक चीज़ थी कि अगर नेहल अच्छे से पढ़ लेती थी तो कई सारे बच्चों से नेहल के अच्छे मार्क्स आते थे तो दे ऑल्सो यूज टू फील जेलस एंड दे एट टाइम्स उनको लग शुरू में दे वर वेरी गुड टू नेहल, उनको लगा ये तो कुछ कर नहीं पाएगी। बट देन व्हेन नेहल यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स तो दे एक्चुअली गॉट अवे, दे स्टार्टेड बुलिंग और मूविंग अवे फ्रॉम नेहल क्योंकि उनको लगा ये तो हमसे भी अच्छा कर रही है। तो समहाउ दे कुड नॉट एक्सेप्ट डाइजेस्ट दैट फैक्ट। वो बहुत तो फर्क पड़ता है। वो Right. उनको दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वर्बल नहीं है। जैसे उसने बोला कि वर्बल कैपेबिलिटी में लोग और वर्बल उससे उसको जज करते हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे नहीं। तो वो उनको जब वो बोल रही है तो उनको लगता था ये तो कुछ कर नहीं पाएगी और वो जब वो कर देती थी तो फिर उनको एंड देन टीचर्स भी बोल देते थे कि उसने किया, इतना अच्छा किया नेहल, वाओ। तो देन हाँ प्रेज किया तो Competition. कंपटीशन बहुत ज़्यादा। फिर स्कूल में शी ऑलवेज फेस लॉट ऑफ कंपटीशन, कोई फ्रेंड उसके नहीं थे, उसको अकेले बैठना पड़ता था। बट इन कॉलेज क्राउड इज़ ऑलवेज अ मिक्स्ड क्राउड। तो कॉलेज में एंड जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है इट्स फॉर अस इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ कॉलेज। दे हैव एक्सा सीवीसी जहाँ पे वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए ध्यान देते हैं and even all the teachers are aware about disability and they are very open and so for admission also they gave preference to us। तो वो स्कूल कॉलेज में जो उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला तो उसकी जो प्रोग्रेस है सोशली, जो उसकी प्रोग्रेस है वो कॉलेज में बहुत ज़्यादा हुई और उससे हमको जॉब में बहुत हेल्प मिली बिकॉज दैट ट्रांजिशन वाज वेरी एंड शी एंजॉयड हर कॉलेज लाइफ। वो स्कूल में उसको इतना मज़ा नहीं आता था, कॉलेज में क्यों कॉलेज अच्छा लगता था, स्कूल कॉलेज इट्स ऑलवेज कॉलेज। Yeah, so that's very nice that you took the education ahead. जैसे कई सारे पेरेंट्स अभी फोकस कर रहे हैं कि जहाँ बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा है उसको और प्रोत्साहित किया जाए एंड लेट देम फिनिश द एंटायर academia and let them progress to how much ever they want to study so that even they are eligible for equal employment. And it's fabulous. How did EY happen? थ्रू FFA इज़ अवर पेरेंट सपोर्ट ग्रुप जिसने हमको शुरू से जब भी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस भी जो पेरेंट्स का हमको सपोर्ट मिला था दैट वाज थ्रू FFA। और बहुत सपोर्ट था उस समय, लाइब्रेरी से मैंने बहुत किताबें पढ़ी। उसी FFA का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू हमको EY की वैकेंसी के बारे में पता लगा एंड देन वी अप्लाइड। तो उसमें 5 लेवल ऑफ इंटरव्यूज़ थे क्योंकि वो पूरे इंडिया के बच्चों में से वो लेना चाहते थे। तो एंड दैट वाज फॉर इंडिया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे वर कंडक्टिंग इन द ओपनिंग्स वर देयर। तो पूरा वो US से ही उन्होंने अपना कंडक्ट किया था। तो वो 5 लेवल्स नेहल समहाउ क्लियर कर लिए and she got that. She's the only girl. Yeah, the girl. Only girl. Finally they selected 5 individuals on spectrum and उसमें से नेहल was the only girl. Excellent. Yeah. How was the support from EY? Ernst & Young किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया to help नेहल? का एक्चुअली उनका NCOE करके दे हैव मतलब ओपनिंग्स एंड दे हैव अ सेक्शन एंड जहाँ पे वो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को लेते हैं
और तो उनका वो यूएस में काफ़ी ज़्यादा उसमें लोग हैं, तो उसमें उनको उसके बारे में नॉलेज है। तो वो जब भी नेहल को वर्क अलॉट करते हैं तो दे अलॉट वर्क बिकॉज़ नेहल ने क्लियर कर दिया कि वो शी इज़ गुड इन इफ़ यू गिव इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग देन इट्स शी इज़ फास्टर एंड शी अंडरस्टैंड्स बेटर। अगर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोल दिया तो उसको समझ में नहीं आता है। सो दैट इज़ क्लियर टू देम। तो वो जो वर्क कर देते हैं बहुत मतलब पूरा उसको डिस्क्राइब करते हैं मेल में एंड दे गिव वर्क थ्रू मेल एंड शी हैज़ टू सबमिट द वर्क थ्रू मेल एंड इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होते हैं, एसओपी बहुत क्लियर होता है। तो बिकॉज दे अंडरस्टैंड ऑटिज्म सो इट्स ईजियर फॉर नेहल टू So, Yes, so nice to hear that. thank you. they promote her stone painting like anything. Tony, Yeah. lovely. They have Yammer, like one social. They have their internal social media. उसमें नेहल हमेशा स्टोन पेंटिंग्स डालते हैं एंड देन अगर उनके शो नहीं वो कौन आए थे जिनको आपने वो बना के दी थी ग्लो I also made stone painting of Clopalita and presented to him. Clopalita. ग्लोबल लीडर ऑफ ईवाई उनके लिए वो बनवाते हैं एंड देन ही केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सो दे प्रेजेंटेड इट सो या सो दे प्रमोट हर इसके बॉस ही कितना स्टोन पेंटिंग ऑर्डर करते हैं या सो So nice. Hmm. नेहल, क्या आप बताएंगे कि हाउ डू यू ट्रैवल टू ऑफिस? I travel independently by local train. First, I go to office in morning by car, and then in evening I come by local train, and I manage to travel alone by bus also, and I learn to travel independently. Superb. How much time do you take to reach office? It takes around 1:45 minutes to reach office. Wow, fantastic. Huh. Neil, can I please ask you, what are your future plans? I want to make a big name for myself, and I also want buy my stone painting, and I want to become a role model for parents and individual on spectrum. I want to remain financially independent. I also want to remain gainfully employed throughout my life. Fantastic, Nehal. Superb. You really are wonderful, yeah. And the way you are able to articulate this, I can't imagine that you had any verbal issues at all. Coming to y'all, what are your future plans, Nehal? क्या होने वाला है 10 साल में, 20 साल में? आपकी वेदिका भी है, क्या आपके फैमिली का क्या प्लान? एक्चुअली हमने फाइनेंशियली तो सोच लिया है वी हैव मेड विल एंड वी हैव मेड ट्रस्ट तो उससे हमने फाइनेंशियली सोच लिया है कि कैसे नेहल को समय समय पे पैसा मिलेगा एंड वी हैव मेड ट्रस्टीज ऑल्सो प्लस वी आर लकी कि दोनों सिस्टर्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो उससे जो रिगार्डिंग मैरिज तो वैदिका एंड अनुपम का कहना है कि अकेले भी खुश रहा जा सकता है और मेरा कहना है कि लेट्स कीप द ऑप्शंस ओपन वी डोंट नो भविष्य में क्या होना है बट लकीली इंडिया में वी गेट द सपोर्ट सिस्टम हमारे पास मेड मिल सकती हैं तो ऐसा एंड नेहल इज इंडिपेंडेंट जो उसको काफ़ी काम करना आता है अपने आप वो खुद मैनेज कर लेती हैं बट शी नीड्स अ कंपनी मतलब वी कैन नॉट से कि उसको खाना बनाना आता है तो वो रह सकती है नहीं शी नीड्स समवन फ्रॉम हर फैमिली टू बी विद हर सो हमारी यही एक यही हमने वैदिका को देने की कोशिश की है कि एंड शी इज़ लकीली उसका भी यही सोचना है कि हम सब साथ रहेंगे आगे देखते हैं क्या होता है Lovely. एनीवे और वैदिका एक थोड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो 3 ट्रस्टीज़ हैं वैदिका उनमें से एक है जो ट्रस्ट की तो इट्स लाइक उसकी शी इज़ हैप्पी इन बीइंग ट्रस्टी और वी हैव टॉक्ड टू हर and then only after she has said yes we have made her a trustee so it's not as if we are trying to हम उसके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे हैं ये कोई प्रेशर नहीं है बट शी वांट्स टू डू इट एंड एज सीमा सेट की दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है दे रियली लव ईच अदर तो दैट इज़ व्हाट वी थिंक एंड इवन जो विल है वो भी हमने वैदिका को समझा के बनाई है ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि दीदी को आपने ज़्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया
तो उसको हमने क्लियरली हर चीज़ समझा के ही हमने चीज़ें बनाई हैं। विल में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, विल का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया है कि जो डिफ़िकल्ट जो एसेट्स डिफ़िकल्ट हैं वो वैदिका विल हैंडल, एंड जो ईजियर हैं दैट विल गो टू नेहल्स ट्रस्ट। तो बिकॉज वैदिका कैन डू इट, वैदिका के लिए उतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी, नेहल के लिए डिफ़िकल्टी होगी, सो द ईजियर थिंग्स वी हैव गिवन टू नेहल। और इनजस्टिस हमने वैदिका को पूरा दिखाया कि कैसे कैसे डिवाइड किया है, तो उसको ये भी नहीं है कि उसके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, बिकॉज इफ हर सिस्टर इज अ स्पेशल चाइल्ड इट्स नन ऑफ वेदिका's fault or anybody's fault, तो why should Vedika suffer for something which she is not responsible for? तो ये चीज़ इवन दो उसको मालूम है, पर हमारी तरफ से एज पेरेंट्स उसको बताना ज़रूरी था, जिससे कि उसको कोई भी संशय, कोई भी ये संदेह नहीं रहे कि शायद मुझको कुछ काम मिला है। और जबकि उसने पूछा नहीं, शी अंडरस्टूड कि ऐसे ही होगा, बट एज पेरेंट्स वी took it as our responsibility, as our that she should know कि क्या है और कैसे है। लवली। मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट्स को कि जब सिबलिंग है तो और आपको पूरा विश्वास है कि ये हम उनके स्पेशल नीड सिबलिंग को संभालने वाले हैं या इंडिपेंडेंट हैं, उनकी एक लाइफ है, इनकी एक लाइफ है। लेकिन जब आप ट्रस्ट बना रहे हो और आपने ये क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया कि ये पैसा इनके लिए और ये इनके लिए, तो उनके लिए भी आसान हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, उन पर आपने डिसीजन छोड़ नहीं दिया है। ये बहुत लोगों को मैं समझा के थक गई हूँ कि ये पेरेंट्स ने डिसाइड करना है, ना कि हम तो जी लेंगे फिर हम चले जाएंगे फिर ये बच्चा देख लेगा। आप कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को छोड़ रहे हो, ऐसा मत करो। नो, जिस तरह से आपने ये सोचा है दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, कि आपने पहले से लिख दिया कि हाँ ये इनके लिए है और ये आपके लिए है, और आप ही वो भी संभालने वाले हो उनके लिए। लेकिन आपको हमने एक दिशा दी है कि ये इनके लिए आप संभाल के रखो, एंड वो उनको कितना वो सपोर्ट होता है, यू नो, सो दिस इज फैबुलस। कमिंग टू यू सीमा, आपने बैक टू बैक इंग्लिश हिंदी दोनों बुक्स लिख दी है, वो एक्सपीरियंस कैसा था? आप बताएंगे थोड़ा बुक के बारे में? एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स जैसे एफएफए के थ्रू भी बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं, फोरम तो फॉर ऑटिज्म। फोरम फॉर ऑटिज्म से। तो होता ये था कि बहुत से माएँ बताती थी कि हमारे इन लॉ समझते नहीं हैं, हम उनको समझा नहीं पाते हैं, वो हम पे शक करते हैं कि हमारे कारण बच्चे को प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि मुझे बिकॉज़ हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो मुझे लगा कि मैं नेहल की जर्नी, क्योंकि हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं, हमने भी कुछ कम पूजा नहीं की, कुछ कम प्रसाद नहीं खिलाए हैं नेहल को। तो जो गलती मैंने की है वो दूसरा ना करे, तो उसके लिए मैंने सोचा मैं हिंदी में एक बुक लिखती हूँ जो पेरेंट्स भी पढ़ सकें और जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वो भी पढ़ सकें, ताकि उन्हें ऑटिज्म क्या है वो पता लगे। तो उसके लिए मैंने ये बुक लिखी थी, संघर्ष। और ये बुक जो है इसका काफ़ी लोगों ने पढ़ा और उनको फ़ायदा हुआ। अच्छे फीडबैक्स ये मिले कि हाँ, हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो आपने लिखी हैं कि गलती है, जो करने से फ़ायदा नहीं है। प्लस मेरी सास का, मेरी ननंद का एटीट्यूड चेंज हो गया। नाउ दे आर ऑल्सो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। तो वो सब सुन के अच्छा लगा। जब ये अच्छा लगा तो ये भी फीडबैक मिला कि इंग्लिश में भी लिख देते तो अच्छा होता, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो इंग्लिश में ज़्यादा थ्रू है। तो अनुपम ने इसी बुक को थोड़ा ट्रांसलेट किया एंड कुछ उसको हमने एनहेंस किया, एंड देन वी केम आउट विद दिस परफेक्ट इम्परफेक्शंस। तो इसमें इट्स नॉट अ उपदेश काइंड ऑफ बुक, ये लाइट सी बुक है। इसमें गब्बर सिंह भी आता है, इसमें धन्नो भी आती है, सब कुछ होता है। सो एक हल्के फुल्के तरीके से हमने लिखी है कि हमारे साथ क्या हुआ। वी आर नॉट सेइंग कि हम सही हैं, बट हो सकता है किसी पेरेंट को इससे कुछ पिकअप पॉइंट मिल जाए। जब इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब हिंदी की बुक सीमा लिख रही थी तो इनिशियल 4-5 चैप्टर्स उसने पूरे किए थे, तो नेहल वैदिका को पढ़ने को दिया। तो जब वैदिका ने पढ़ा तो शी हैड टीयर्स इन हर आईज। तो उसका ये व्यू था कि आप इसको स्टोरी को कुछ ऐसा बनाओ कि बीच बीच में थोड़ा कहीं ह्यूमर हो उसमें, जिससे कि हैवी नहीं हो पढ़ने में। तो दैट इज़ हाउ
शोले के अलग अलग किरदारों ने इसमें एंट्री की, दीवार के किरदारों ने एंट्री की, और दैट इज़ हाउ So we will definitely request all of our viewers to buy your books also, and those who would love to read in Hindi, read in Hindi, they can buy the Hindi, and those in English can buy the English. What is it that you would like to tell parents? बहुत पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? पहले मैं बोलना चाहूँगा, आई हैव अ स्पेशल मैसेज फॉर द डैड्स, फादर्स। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल जो हमारे यहाँ जो थिंकिंग चली आती है कि द किड्स आर वेरी क्लोज टू मदर, वो है, ठीक है, बट जब यू हैव अ स्पेशल चाइल्ड तो उसमें जितना योगदान माँ का है उतना फादर का भी होना चाहिए। उससे दो फ़ायदे होते हैं बेसिकली। एक तो ये है कि मदर को थोड़ा सा नेक्स्ट डे के लिए एक ब्रेक मिलता है, प्लस कुछ चीज़ होती हैं जो फादर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं वो फादर अच्छे से करा सकते हैं, कुछ चीज़ें मदर अच्छे से करा सकती हैं। दूसरा, एक जो आप किसी भी रिलेशनशिप में कोई चीज़ें डिवाइड करके चलते हैं, नॉट एवरीबडी इज़ परफेक्ट इन एवरीथिंग। तो जब स्पेशल किड के साथ हमारे बच्चों के साथ काम करने की बारी आती है, तो वहाँ भी इट इज़ अ 50-50 जॉइंट वेंचर। इट कैन नॉट बी 100% प्रोप्राइटरी फॉर मदर, इट हैज़ टू बी अ जॉइंट वेंचर। दूसरा ये होता है कि उसमें अलग अलग तरीके भी निकलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर मदर किसी तरीके से एक चीज़ करा रही है, डेफिनेटली फादर का पर्सपेक्टिव अलग होगा, तो शायद वो क्लिक हो जाए। तो मोटी बहुत अच्छे से कराते थे, स्पीच थेरेपी बहुत अच्छे से कराते थे। तो उसमें क्या होता है कि नए नए तरीके निकलते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होते हैं, चीज़ें जो हम लेटरल थिंकिंग बोलते हैं वो इट कम्स टू प्ले, क्योंकि एक तरीके से नहीं हो रही तो दूसरे तरीके से कैसे होगी। तो वो बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फादर्स कंट्रीब्यूट। कई सारी चीज़ मदर थोड़ा एक स्ट्रिक्टनेस आती है तो फादर थोड़ा सा लीवे देते हैं बच्चों को, तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली जो मैनेजमेंट टैक्टिक्स है वो भी काम आती है। तो इट्स लाइक फादर्स अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली, और हमने हमारे केस में देखा है कि नेहल की प्रोग्रेस में अगर सीमा का 60% हाथ है तो मेरा भी 40% है। इवन दो आई वांटेड इट टू बी 50%, बट शायद मैं उतना नहीं कर पाया। बट बहुत ज़रूरी है कि फादर्स भी Beautifully बच्चे के said, साथ Anupam. Very, काम very करें। beautifully said. And even in our case, I can proudly share that um, there used to be some points where Ravi used to say बहुत over हो गया है, अभी back off, okay? And there have been so many instances, I think, without his humor हम आगे ही नहीं जा पाते थे। अगर हम वो नहीं करें as a combination, तो where would we have reached? You want to say anything, Seema, to the parents, especially to mothers and everyone, and all the other family members also? मदर्स का मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत ओवर एक्सपेक्ट मत करिए बच्चे के साथ में, उसको ओवर प्रेशराइज मत करिए, क्योंकि होता ये है कि जैसे बहुत सी मम्मियाँ होती हैं जो जॉब छोड़ के ये सब करा रही होती हैं, तो उन्हें क्या लग रहा होता है कि मैंने जॉब छोड़ा है तो उसमें प्रोग्रेस भी नहीं मिल रही है, तो मेरा तो जॉब छोड़ना बेकार है। फिर हस्बैंड जब ऑफिस से आएगा वो मेरे से फीडबैक लेगा, अरे तुमने तो घर बैठी हो, ये भी नहीं कराया, तो वो ओवरडू करती है Very important thing you said, Seema, because you are one of the senior most people in the organization. आपको भी कितने 25-30 साल हो गए MTNL में? You are a DGM, general manager. I mean, you stuck to this and you stuck to your career and you managed it beautifully. This is a very important thing that you've shared that most mothers fall off the radar completely of a career. या दे जस्ट लीव द जॉब एंड देन दे गेट ओवर प्रेशराइज्ड, क्योंकि उन्हें परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही होती है और उसमें वो बच्चों को प्रेशराइज करती है, प्रोग्रेस नीचे हो जाती है, बर्नआउट्स होते हैं, हस्बैंड से लड़ाई होती है, फिर और बर्नआउट्स होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप रोज की जैसे अनुपम ने बोला बिट्स में प्रोग्रेस देखिए, एंड इनकी प्रोग्रेस ना बहुत अनइवन है, तो इसीलिए आपको हो सकता है किसी दिन बहुत अच्छा कर दें और किसी दिन 2 स्टेप पीछे चले जाए। तो टूटना नहीं है और रोइए, जितना रोना है रोइए, बट नेक्स्ट डे फिर वैसे ही खड़े हो जाइए, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। एंड दूसरा, आप ये मत सोचिए कि आप सुपर वुमेन हैं, आप सब कुछ कर लेंगी। आपको आपके सपोर्ट स्टाफ से पे डिपेंड करना पड़ेगा। आप सपोर्ट स्टाफ को आप उस पर स्पेंड करिए, उस पर कंजूसी मत करिए, सपोर्ट स्टाफ पे स्पेंड करिए।
थेरेपिस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड मत करिए, उनसे होम प्रोग्राम लीजिए और उस होम प्रोग्राम को घर पे फॉलो करिए। वो थेरेपिस्ट कितने भी अच्छे हों, वो वीक में 1 दिन या रोज़ 1 घंटे में आपके बच्चे को उतना नहीं सिखा पाएँगे जितना 24 आवर्स में आप सिखा पाते हो। एंड बच्चे को भी वो 1 घंटे में, बहुत सी माएँ बोलती हैं कि वहाँ थेरेपिस्ट के यहाँ तो बहुत अच्छा कर रहा था, घर में आके तो वैसे ही हो जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप घर में छोड़ दे रहे हैं, उसको रिलैक्स होने दे रहे हैं। आप घर में भी उस पूरे प्रोग्राम को जारी रखिए, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एंड दूसरा है, फेथ रखिए बच्चे के पोटेंशियल के ऊपर। एक चीज़ नहीं कर पाएगा, छोड़ दो, दूसरी चीज़ करेगा, दूसरी नहीं कर पाएगा, छोड़ दो, तीसरी चीज़ करेगा। डोंट गेट स्टक कि ये नहीं कर रहा है, उसका बच्चा तो ये करता है तो मुझे ये कराना ही है, उसका बच्चा ड्राइंग अच्छा करता है तो मेरा बच्चा भी अच्छा करना चाहिए। नहीं, नहीं कर रहा है ना, छोड़ दो, वो कुछ और अच्छा करेगा। कुछ और अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसको बेसिक स्किल सिखा दो जिससे वो अच्छे से जी पाए। मतलब बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, अंडर एक्सपेक्टेशन मत रखो। एंड डोंट गेट टू मच ऑफ प्रेशर। आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये आपके कारण नहीं है। डोंट फील गिल्ट। शुरू में बहुत साल बीइंग अ वर्किंग मदर मुझे बहुत बड़ा गिल्ट रहा, बहुत बड़ा। वो वैदिका ने निकाला, वो वैदिका ने मुझे समझाया कि मम्मी, हमको गर्व है आप पे कि आप वर्किंग वुमेन हो। अगर आप हाउसवाइफ होती तो शायद मुझे इतना गर्व नहीं होता। तो मुझे लगा नहीं, ये गलत है, हाउसवाइफ भी बहुत काम करती है बेटा, ये गलत है। बोलती नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि वो काम नहीं करती है, बट यू मैनेज्ड बोथ द फ्रंट, इसलिए मुझे गर्व है। इसलिए गिल्ट मत पालो कि यू वर्क। गिल्ट पालना गलत बात है। यू वर्क एंड यू मैनेज नेहल, सो डबल वो हो गया ना, डबल बोनस हो गया। बोलती मुझे तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा इससे ना। तो गिल्ट, अगर आप वर्किंग हैं तो गिल्ट मत पालिए, और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो डबल गिल्ट मत पालिए कि बीइंग हाउसवाइफ ऑल्सो आप ये नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत अच्छे से बोला। एंड सीमा, आई एम श्योर ये सब आपने बुक में लिखा है जो हमको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। एक क्विक क्लास पूछूं, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है? नेहल, आपको कहाँ जाना है? कौन से कंट्री में जाना है? घूमने कहाँ जाना है? इंडिया, और पोर्ट प्लेयर, अंडमान निकोबार पोर्ट प्लेयर, इसके अलावा ला- Japan, Europe. वेरी गुड। Yes. Last year, we also visited Dubai, Malaysia, Singapore, and Malaysia. वेरी ना, Yes. यू एंजॉय ट्रैवलिंग? Yes, I enjoy traveling, and I'm going to tell something about stone painting. वो ये I also made a stone painting of Taupti Mumu Ma'am and presented it to the President of India to her officials. And I also made stone painting of global leader of EY and presented it to him. And my work was appreciated by them. And my painting has been displayed in many exhibitions. excellent. And I hope and pray that there will be many, many, many more exhibitions and many, many more such senior leaders who will see your work. Right? Okay. You're a huge inspiration, Nehal, to many, many people who are watching you. And what you have achieved is fabulous. And we can only wish you all the best to, grow from strength to strength. Thank Yeah. you. So thank you so much for being on this podcast. Thank you so much. And my work was also displayed at Rashtrapati Bhavan on the occasion of Purple Fest. क्या बात है, और क्या चाहिए? Very nice. Thank you so much, Seema. Thank you so much, Anupam, for finally, we got to do this. And I think to anyone who sees y'all, there's a lot to learn. And the way y'all openly share the positivity that y'all radiate as a family is just fabulous. So thank you for being so open, for sharing everything. And I'm sure everybody who watches it, they're going to come back saying that this was so beautiful, and they will share it Give ahead. some message to neurotypical people. Please, Neha. My message to neurotypical people is disabilities do not disable any individual but absence of teamsters. Neurotypical people should not treat person with disabilities in their inferior way. They should give their respect and understanding. They are not lesser in ability but are just different. Wow, that's very, very profound. Yes. Yes, and I really hope that everybody follows what you said, Nehal. Thank you for sharing so much. Thanks a ton. Yes. Thank you so Thank much. you. Thank you.
Everyone, just hope that you will definitely listen to this and you all will love this. Kindly do share it as much as possible, because having somebody like Nehal in our lives, also gives you a lot of positivity and faith that the world can go on with many unique abilities that we have around us. Thank you.